Namaskar. Welcome to the AI Agents Workshop brought to you by Kamala, the Kapidhwaj Association of Modern Logic, Automation, Learning and Career Advancement, in collaboration with Hack with India, the biggest hackathon organizer in India, powered by Microsoft Learn, our official certificate issuing partner. Today is day 5. Today's session was supposed to be on RAG, but unfortunately our speaker for the session today has turned ill, Mr. Harsh Agrawal. He is hospitalized. We are praying for his speedy recovery. Today we will have a bonus session on LangChain. This is a pre-recorded video. So after the session there will be a quiz, right? The link to that quiz, which has been shared on WhatsApp, on Discords up till now, it will not be shared there anymore. We want your maximum participation on YouTube on these live streams. So the link to that quiz will be added after the video, in the last few seconds of the video. So keep watching this video. You will find that the link to the quiz, the QR as well to the quiz. Besides that, this session is a pre-recorded session. It is going to be in Hindi, but for our non-Hindi speaking audience, do not worry, you will still be able to do this quiz. The session on day 3 on LangChain was in English. If you watch that video, if you rewatch that video, you will still be able to do the quizzes for this. You will still be able to do, attempt the questions for this quiz. Okay, we will have a live session tomorrow where we will teach you how to make your own AI agents. Our speaker for tomorrow is Mr. Rajat Rajput. Our speaker for today, LangChain in Hindi, is Mr. Manas Chopra. A great session ahead. We will have a live session tomorrow on how to build your own AI agents. So come prepared with your doubts and more information about the hackathon coming tomorrow. Okay, so this is LangChain by Mr. Manas Chopra. Stay tuned, keep watching, and happy learning. Hello guys, my name is Manas Chopra. I am co-founder of Geek Room and also an AI engineer as a total of 2 years of experience building these AI solutions. So आज हम समझेंगे कि आखिर LangChain क्या होता है. बहुत फेमस हो रहा है कि मतलब LangChain है, ऐसा कुछ है. मैं आपको बता दूं कि LangChain एक ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है जो कि बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देता है. राइट, इकट्ठा करने से मेरा मतलब है जो भी चीज़ें AI में यूज़ होती हैं, लाइक आपके LLMs हो गए, आपके वेक्टर स्टोर्स हो गए, आपके एम्बेडिंग्स हो गई, उन सबको मिक्स करना एंड एक जगह यू कैन से कलेक्टिवली यूज़ कर पाना. ठीक है, अब मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि एक्जैक्टली चीज़ें हैं क्या, मतलब वेक्टर स्टोर एम्बेडिंग की चीज़ें. आप समझो कि LangChain एक ऐसा मॉड्यूल क्रिएट कर देता है, ऐसा कलेक्शन क्रिएट कर देता है जहाँ पे सब कुछ चीज़ें एक सिंगल नोड के थ्रू निकल रही हैं. कि लेट्स से आपको OpenAI का LLM यूज़ करना है, आपको Claude का LLM यूज़ करना है, तो आप एक ऑप्शन आपके पास है कि अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन में जाओ. आप OpenAI डॉक्यूमेंटेशन में गए, वहाँ यूज़ कर लिया आपने. देन Claude में गए, वहाँ यूज़ कर लिया आपने. सिमिलर विद वेक्टर स्टोर्स एंड एम्बेडिंग्स, आप रिस्पेक्टिव वेक्टर स्टोर और एम्बेडिंग में गए, आपने वहाँ से यूज़ कर लिया. बट एक और मेथड जो आपको LangChain प्रोवाइड करता है, दैट इज़ सिंपल यूनिफाइड ऑर्केस्ट्रेशन, जिसके थ्रू आप सारी चीज़ें एक साथ यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कुछ रॉकेट साइंस है या ऐसा कुछ बहुत ही वो है, बट हाँ इसने डेफिनेटली चीज़ें ईज़ ज़रूर करी हैं डेवलपर्स के लिए. दो इट इज़ नॉट वेरी मच यूज़फुल इन प्रोडक्शन सिस्टम्स मोस्टली, क्योंकि ये चीज़ें ना लाइक क्या होता है, एक टाइम के बाद बहुत ब्लोटेड हो जाती हैं. कभी कभी क्या होता है कि ये लाइब्रेरीज जो होती हैं ये इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर लेती हैं अपने अंडर द हुड कि ये चीज़ें प्रोडक्शन में यूज़फुल नहीं होती. ठीक है, सो कई चीज़ तुम देखोगे कि वाई LangChain इज़ नॉट यूज इन प्रोडक्शन एक्सेट्रा. तो कभी कभी ऐसा होता है. ठीक है, नॉट सेइंग इन एवरी अदर केस, बट हाँ ठीक है. अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, मतलब देख रहे हो ये कंपनीज यूज़ करती है LangChain को, एंड कई कंपनी नहीं भी यूज़ करती, कई कंपनी एक्चुअली में यूज़ कर पाती हैं चीज़ों को. राइट, तो इसमें ये सब चीज़ें हैं आपकी. इसमें क्या क्या हो देख रहा था तुम.
इसमें ऑर्केस्ट्रेशन है, जो मैंने आपको बताया कि ऑर्केस्ट्रेशन ऐसे काम करता है आपकी चीज़ें मिक्स करने का। देन इंटीग्रेशन होता है कि लेट्स से आपको अपना AI ऐप आपको किस चीज़ में इंटीग्रेट करना है, तो उसकी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। इवैल्स एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, तो इसमें आपका होता है लैंगस्मिथ, जो कि आपका इस चीज़ों को ध्यान रखता है कि आप LLM कितने टोकन्स ले रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, आपकी सही हो रहा है नहीं हो रहा, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आपका एग्जैक्टली एक्सेट्रा। देन आपका डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट आप ऐसा मानो कि सब कुछ हो गया आपका एंड अब आपको पब्लिकली शो करना है इन चीज़ों को, देन आप डिप्लॉयमेंट यूज़ करते हो एंड LangChain आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू आप बाकी चीज़ों से लिंक कर पाते हो। लेट्स से आपकी API बन गई, AI का ऐप बन गया आपका थ्रू एनी API लेट्स से, एंड वो बनाया आपने LangChain से। देन आपको डिप्लॉय करना है तो उसके लिए सेम एक सर्वर जो हो गया, मतलब आपका एक सेम सर्व करके एक पाइप जो हो गया आपका, वो प्रोवाइड करता है LangChain आपका। इन चीज़ों में हेल्पफुल होता है वो भी। अब स्टार्ट करते हैं LangChain की बेसिक डॉक्यूमेंटेशन से। अब देखो, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है ना किसी चीज़ को सीखने का, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन एनी डे। ठीक है, आप कोई भी चीज़ या तो बना के सीख सकते हो, ठीक है, बट उसको सीखने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो लर्निंग चाहिए उसका बेस्ट सोर्स होता है डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि आप यूट्यूब वीडियो देखोगे ना, उसमें क्या होगा कि आपको 20% नॉलेज दे दी जाएगी, बट बाकी चीज़ें आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी। सो इससे बेटर है कि डॉक्यूमेंटेशन में जब सब कुछ गिवन है वहाँ से पढ़ लो। नॉट सेइंग सब कुछ एक बारी में पढ़ लो, जस्ट लर्न इम्प्लीमेंट, ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, सो वी विल बी स्टार्टिंग LangChain थ्रू द पाइथन फ्रेमवर्क। इसका JS फ्रेमवर्क भी है, बट पाइथन से स्टार्ट करेंगे जनरली, क्योंकि पाइथन ही जनरली यूज़ होता है, राइट। सो इसके बाद हमारे पास एज यू कैन सी, देखो लेफ्ट में, वेट, हाँ, लेफ्ट में हमारे पास सबसे पहले है इंटीग्रेशंस। ठीक है, इसको अभी ऊपर वाले को छोड़ते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशंस, तो हम पे किस किस के इंटीग्रेशंस LangChain में अवेलेबल है। जैसे यू कैन सी एंथ्रोपिक इसका क्लाउड है बेसिकली, एस्ट्राडीबी डेटाबेस है, AWS, Azure AI, Cerebras, Chroma, Cohere, सो लॉट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक एग्जाम्पल से। लेट्स से OpenAI से स्टार्ट करते हैं, राइट। OpenAI, तो हमारे पास OpenAI में क्या मेथड्स हैं यूज़ करने के, या तो बेस चैट OpenAI है, Azure चैट OpenAI है, मतलब थ्रू Azure क्लाइंट चैट OpenAI है ना, OpenAI रिफ्यूजल एरर है, ये बेसिकली एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। अब मैं बताऊंगा धीरे धीरे एग्जैक्टली चीज़ें हैं क्या ये, अभी जो आपको जार्गन्स लग रहे होंगे। सो विल कम ऑन दैट, ओके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं OpenAI से। एज आई मैंशनड कि OpenAI में बेसिकली सेटअप कैसे करना है। सो हम पे दिख रखा है डायरेक्टली डेफिनेशन इसका, कि यहाँ पे OpenAI एन अमेरिकन AI रिसर्च से मतलब नहीं है हमें, ऑनेस्टली ये थ्योरी बेकार है, बस इन्होंने भी ChatGPT से डाल के दे रखी है बस, राइट। सो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दिस। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा इसका जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है। बेसिकली LangChain एक सिंगल मॉड्यूल है एंड इसके अंदर एक सब मॉड्यूल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, राइट। सो फॉर दिस आई विल बी इम्प्लीमेंटिंग दैट इन अ कोलैब नोटबुक, सो दैट आपके लिए भी ईजी हो जाए, सो दैट आप भी पैरेलली इम्प्लीमेंट कर पाओ इन चीज़ों को, राइट। अगर आप कोलैब के बारे में ना पता हो तो इट्स मतलब जुपिटर बेस्ड इंजन बेस्ड ऑन लिनक्स, आपको यूज़ करना है, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। बेसिकली पाइथन आपके डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसमें आपकी सेल बाय सेल इम्प्लीमेंटेशन होती है, राइट। सो पहले इंस्टॉल करते हैं इसे डायरेक्टली। सो विद यूजिंग कोलैब यू हैव टू फर्स्ट यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, देन पास द क्वेरी, right, so it will take some time, anyways we'll move forward. So first we have to set up OpenAI API की। अब सबसे पहले आपको OpenAI API की चाहिए, ऑब्वियसली आप क्योंकि OpenAI का वो बना रहे हो, मॉडल बना रहे हो, मॉडल कह रहा हूँ सॉरी, एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वो आपको चाहिए डेफिनेटली। सो एक बार हमने सेटअप कर लिया वो, देन आते हैं सेकेंड इम्पोर्ट स्टेटमेंट पे। पहला है फ्रॉम LangChain OpenAI इम्पोर्ट चैट OpenAI, सो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अब। सो ये हो गया है हमारा इंस्टॉल, then go with this, right। then we have Azure Chat OpenAI, जो हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम Azure नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल यूज़ कर रहे हैं, right। now we have embedding model, because देखो सी LLM के साथ दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज एम्बेडिंग्स, जिसके थ्रू आपके सिंपल चैट स्टेटमेंट जो चीज़ें होती हैं ये कन्वर्ट होती हैं वेक्टर्स में, क्योंकि LLM डोंट अंडरस्टैंड
द बेसिक सेंटेंस एंड मे बी द बेसिक थिंग्स. सो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है एक सिमेंटिक एम्बेडिंग्स में, ठीक है, जो कि सेंस बनाती हो नंबर्स की फॉर्म में हो, सो दैट इट कैन जस्ट मेक सेंस टू LLMs पर्टिकुलरली. सो विल लोड द OpenAI एम्बेडिंग्स. आप कोई और से एम्बेडिंग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, हगिंग फेस एम्बेडिंग्स, कोहेर एम्बेडिंग्स, एनीथिंग, राइट. तो देन डॉक्यूमेंट लोडर. अब डॉक्यूमेंट लोडर क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली डॉक्यूमेंट लोड भी करने हैं, जो हमारा डेटा होगा वो डॉक्यूमेंट से आएगा. मतलब जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. ओके, सो यहाँ पे ने दे दिया मॉड्यूल फाउंड नहीं है. अब देखो डॉक्यूमेंटेशन बेकार है यहाँ पे, उन्होंने बताया रखा कि हमें ये चाहिए होगा. अब वील डू दैट. ठीक, अब हम बताएं कैसे करना है ये चीज़. हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं LangChain कम्युनिटी के थ्रू एंड देन विल एग्जीक्यूट दैट. यहाँ पे थोड़ा मुझे LangChain का बेकार लगता है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन इज़ नॉट वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट. डिसेंट बट नॉट वेरी गुड. तो रिट्रीवर चैट आई डोंट थिंक वी नीड इट राइट नाउ. डेली इमेज जनरेटर बाद में देख लेंगे भाई, इतनी ज़रूरत नहीं है हमें, राइट. सो ये आपका बेसिक एग्जांपल है. अगर आपको डायरेक्टली OpenAI यूज़ करना है, अब आपको क्वेरी चलानी है इसमें, वो आप देख सकते हो, ठीक है, कौन कौन से एग्जैक्टली फंक्शन होते हैं इसके, ठीक है, राइट. सेम विद यू कैन से हगिंग फेस हो गया आपका. हगिंग फेस में आपको सेम ये डाउनलोड करना है, देन आपको एम्बेडिंग डाउनलोड करनी है हगिंग फेस का. हगिंग फेस जनरली यूज़ करता है अपनी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर एम्बेडिंग्स, राइट. ये अलग अलग एम्बेडिंग्स भी होती हैं वहाँ पे. तो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ दैट एंड एनी काइंड ऑफ थिंग्स. मतलब Hugging Face also have the library called dataset, जिसके थ्रू आपकी डेटासेट जितने अवेलेबल है Hugging Face में वो डाउनलोड कर सकते हो आप एंड यूज़ कर सकते हो अपने यूज़ केसेस में, राइट. एंड देन वी हैव चैट मॉडल्स पर्टिकुलरली फॉर चैट पर्पसेस, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, जेमिनी नहीं, मैं अगैन लेट्स यूज़ ग्रॉक, क्योंकि ग्रॉक फ्री है. फ्री एज एन फ्री क्रेडिट्स मिल जाते हैं ग्रॉक के. आजकल OpenAI के बंद हो गए हैं बट ग्रॉक के मिलते हैं, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है. जैसा आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स बनाओ जस्ट यूज़ ग्रॉक, ब्लाइंडली ग्रॉक यूज़ कर लो, ठीक है. देन सेटअप करते हैं एग्जैक्टली जो उन्होंने दे रखा है वो करते हैं. हमें चाहिए API की. सो लेट मी जस्ट क्विकली गेट दी API की. वो भी बताता हूँ कैसे मिलेगी आपको. console.grok.com, ठीक है. यहाँ पे गए आपने लॉगिन करा अपनी आईडी से. सो इट्स बेसिकली एन इंजन जो कि ओपन सोर्स मॉडल्स को सर्व करता है, ठीक है. क्रिएट API की. आई जस्ट पॉज द वीडियो हेयर क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी API की बिना ENV में डाले लीक हो जाए. ओके, सो मैंने कॉपी कर ली है. लेट मी जस्ट पेस्ट ओवर हेयर एंड इट इज़ डन. मूव टू नेक्स्ट स्टेप. सो आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर मॉडल फ्रॉम Grok. यू कैन यूज़ एनी मॉडल डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स, राइट. सो दिस हेलो वर्ल्ड. सो एज यू कैन सी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई बन के. पहले कंटेंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जो मैंने बोला था. एंड इसका जो भी दे रखे हैं आर्ग्यूमेंट्स, टोकन कितने लगे हैं मेरे, इसका सब कुछ चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है. अब पर्टिकुलरली आपको रिस्पॉन्स करना है तो आप डेफिनेटली इसको वो कर सकते हैं. लेट्स से मेरे को सिर्फ कंटेंट चाहिए तो मैं डिक्शनरी है क्योंकि ये तो डिक्शनरी से मैं कंटेंट ले सकता हूँ डायरेक्टली, राइट. सो वो मेरे ऊपर है. सो ऐसे यू कैन जस्ट यूज़ एनी काइंड ऑफ मॉडल. मतलब इफ़ आपका केस OpenAI का भी है तो OpenAI में भी यू कैन डायरेक्टली स्विच टू दैट OpenAI दिस सॉरी यस हेलो वर्ल्ड एट्सेट्रा, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं. देन अब आते हैं अगले चीज़ पे जाते हैं, वेक्टर स्टोर. अब वेक्टर स्टोर आप मानो, वेक्टर स्टोर क्या होता है कि आपकी सेंटेंस है, लेट्स से कोई डॉक्यूमेंट है, वो आपका कन्वर्ट होता है नंबर्स में थ्रू एम्बेडिंग्स एंड उन एम्बेडिंग्स को स्टोर करने का काम करते हैं वेक्टर स्टोर, ठीक है. अब मैं बताता हूँ ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट होती है. लेट्स अज्यूम आपके पास 1000 पेज डॉक्यूमेंट है एंड आप 1000 पेज डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली नहीं भेज सकते किसी भी LLM में क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है इतना ना, ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि जनरली हम उसे पहले कन्वर्ट करते हैं एम्बेडिंग दैट इज़ वेरी जनरलाइज्ड. एम्बेडिंग में कन्वर्ट वो करना ही है, चाहे डायरेक्टली भेजो चाहे इनडायरेक्टली भेजो. एम्बेडिंग में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो अंडरस्टैंड जब ही कर पाएगा LLM. आपने एम्बेडिंग क्रिएट कर दी उसके बाद यू हैव टू स्टोर टू वेक्टर स्टोर, राइट. अब इसका क्यों स्टोर करना होता है मैं बताता हूँ. लेट्स से आपने क्वेरी पूछी बाद में कि व्हाट एग्जैक्टली डज लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशन मीन इन दिस डॉक्यूमेंट.
सो अगर आपने डॉक्यूमेंट पूरा पास कर दिया, एक तो कॉन्टेक्स्ट विंडो नहीं है उसकी, तो वो एरर दे देगा आपको। बट अगर आपने वेक्टर स्टोर के थ्रू पास करा है उसे, तो क्या होगा, उस क्वेरी के अकॉर्डिंग वो मोस्ट रेलेवेंट एंड मोस्ट सिमिलर थिंग जो होगी वेक्टर स्टोर से, उसको निकाल के देगा बेस्ड ऑन सिमेंटिक सर्चिंग। सर्च बहुत तरह के होते हैं, बट एक एग्जांपल देना आपको, सिमेंटिक सर्चिंग। अब सिमेंटिक सर्चिंग क्या होती है कि सिमेंटिक से मतलब समझ आ रहा है, बेसिकली लॉजिकली रेलेवेंट। सो लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रेफरेंसेस उस डॉक्यूमेंट में पूछे गए हैं, उनकी पर्टिकुलर एम्बेडिंग निकाल के या पर्टिकुलर वो रेफरेंस निकाल के डॉक्यूमेंट में से वेक्टर स्टोर ला देगा LLM के लिए। तो वो कॉन्टेक्स्ट जो इतना बड़ा था 1000 पेज का, वो छोटा सा बन जाएगा, एंड देन वो पास हो जाएगा आपके LLM में, एंड देन LLM कैन गेट द परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट सो दैट इट कैन आंसर द क्वेरी। सो ये फ़ायदा होता है वेक्टर स्टोर्स का। अब वेक्टर स्टोर्स बहुत टाइप के होते हैं। ओपन सोर्स वेक्टर स्टोर हो गए आपके, क्लोज सोर्स वेक्टर स्टोर्स हो गए आपके, दैट इज पाइन कोन हो गई, चीज़ें हो गई। ओपन सोर्स में आपके आ गए क्वाड्रेंट, ये सब आ गए, ठीक है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं आपके। ये तो एम्बेडिंग हो गई। एक आपका इन मेमोरी वेक्टर स्टोर, मतलब आपको मेमोरी में सब स्टोर करना है अपनी, ठीक है। नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी होंगी आपकी, देखो क्रोमा हो गया, एस्ट्रा DB हो गया, डेटाब्रिक्स का हो गया, फैस बाय फेसबुक, ठीक है, मिलवर्स हो गया आपका, PG वेक्टर हो गया बाय ये बेसिकली पोस्टग्रेस के थ्रू होता है, क्वाड्रेंट जो मैं बता रहा था अभी, ठीक है, पाइन कोन हो गया आपका, राइट। तो उसमें दे रखे हैं मतलब कौन क्या सपोर्ट करता है, देख रहे हो ये सारी चीज़ें। मतलब ये आपके यूज़ केस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे यूज़ करना है चीज़ों को, राइट। इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्शन, क्या क्या चीज़ें किस में यूज़ होती हैं, ठीक है, सब दे रखा है, डिटेल में दे रखा है, ठीक है। सेम विद एम्बेडिंग मॉडल, मैंने आपको बताया एम्बेडिंग मॉडल किस लिए यूज़ होता है, बेसिकली आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए नंबर्स में। अब एम्बेडिंग मॉडल भी मल्टी मॉडल हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीलिंगुअल हो सकते हैं आपके, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो आधा हिंदी आधा इंग्लिश में है, ठीक है। आप नहीं चाहते कि एम्बेडिंग मॉडल ऐसा हो जो सिर्फ इंग्लिश में हो, क्योंकि वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा फिर हिंदी को अच्छे से। तो यू कैन जस्ट चूज़ अकॉर्डिंगली कि कौन सा एम्बेडिंग मॉडल आपको यूज़ करना है, ठीक है। बहुत सारे एम्बेडिंग मॉडल होते हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट दे रखी है आपको, राइट। अब हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। हमने अभी पढ़ा रैग के बारे में। रैग बेसिकली होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई, एम्बेडिंग हो गया, वेक्टर स्टोर हो गया, आपका LLM हो गया, ये सब चीज़ें अभी यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट लोडिंग सब कुछ यूज़ होने वाला है अभी। अब आते हैं इस ट्यूटोरियल पे जो कि लैंगचेन ने खुद बना रखा है। इसको फॉलो करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। आप खुद का बना सकते हैं डेफिनेटली, जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप शुरू में ट्यूटोरियल फॉलो करें, उसके बाद अपना खुद का बना सकते हैं बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट्स जो आपके पास है। अब जो उन्होंने दे रखा है हम डायरेक्टली वो यूज़ करना चाहेंगे। लेट्स स्टार्ट कि इन्होंने एग्जैक्टली बता के रखा है, एग्जैक्टली समझेंगे, मतलब लॉजिक समझेंगे उसका। ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही कर लिया उसे। हमेशा कॉपी करना ठीक है, बट उसका लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स जस्ट क्रिएट अ न्यू नोटबुक इन ड्राइव। यस, सो पेस्ट दिस। सो बेसिकली जो क्वाइट दिख रहे हो आप, ये यूज़ होता है आपका कि आपके वर्बोस ना आए। वर्बोस यानी कि एक्स्ट्रा लॉग्स कि डाउनलोड हो गया, इतना डाउनलोड हो गया, ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ें हो गई, ये सब इतना ना भर के आए। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो डाउनलोड हो रहा है, दिख जाएगा आपको कितना डिफरेंस आता है मॉड्यूल डाउनलोड करने में विद यूजिंग क्वाइट। देख रहे हो, सिंपल सी दे रखा है बस, प्रोग्रेस बार, दैट्स इट, नो अदर वर्बोस, नो अदर इन्फॉर्मेशन। तो ये क्वाइट का फ़ायदा होता है। अपग्रेड मतलब आपका लेटेस्ट मॉडल डाउनलोड होगा इससे, ठीक है। हमें क्या डाउनलोड कर रहे हैं हम, लैंगचेन टेक्स्ट स्प्लिटर, जो कि टेक्स्ट को स्प्लिट करेगा। लेट्स से आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उसको स्प्लिट करना भी नीडेड है, ठीक है। स्प्लिट करना देन बांटना, देन लैंगचेन कम्युनिटी, कुछ मॉड्यूल है इनका, एंड लैंग ग्राफ। लैंग ग्राफ बेसिकली यूज़ होता है आपके एजेंट्स में हम बाद में आएंगे, एजेंट्स पे अभी नीड नहीं है, बट लेट्स सी कितना यूज़ कर पाते हैं उसे, ठीक है। ये एक्सपोर्ट करना पड़ेगा हमें, अभी के लिए हम नहीं करते हैं इसे एक्सपोर्ट, नीड नहीं है इसकी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। आई जस्ट वॉन्ट टू यूज़ ग्रॉक ऑनेस्टली, यस, क्योंकि अगर मैं वो बता रहा हूँ क्योंकि आप खुद यूज़ कर पाओ, क्योंकि आप पे ओपन API की होगी नहीं, या होगी तो क्यों पैसे वेस्ट करने हैं जब आपको फ्री में चीज़ें मिल रही हैं तो, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं देन। ओके की मैं फिर से पॉज कर देता हूँ वीडियो। यप, सो वी आर डन, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग, एम्बेडिंग मॉडल। एम्बेडिंग मॉडल देखो ग्रॉक पे है नहीं, तो हमें OpenAI या किसी और का ही यूज़ करना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट टेक OpenAI एग्जाम्पल ओनली, क्योंकि वैसे हगिंग फेस का भी होगा आई गेस ओपन सोर्स, तो
यस हगिंग फेस का है ना, या दैट्स ग्रेट। उसके लिए शायद हमें टोकन चाहिए होगा, लेट मी सी। मैंने बताया ना आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी यू आर गेटिंग। आई गेस यहाँ पे टोकन मांगेगा, बट लेट्स सी मेरे पास टोकन होगा। एनीवेज इतने बाकी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर स्टोर हम कौन सा यूज़ करेंगे, अभी के लिए इन मेमोरी यूज़ कर लेते हैं। आपको कोई और यूज़ करना हो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। अभी के लिए इन मेमोरी जो मेरे लोकल उसमें स्टोर होगा मैं रख लेता हूँ अभी के लिए, ताकि इतना बाकी हो रहे हैं, इतने रन कर रहे हैं, इतने में ये काम हो जाएगा, राइट। एम्बेडिंग मैं बताता हूँ अभी क्या करा है हमने अभी तक हमने LLM की API की सेटअप करी है, ग्रॉक में लामा 3 की, ठीक है। हमने एम्बेडिंग सेटअप करी है जिसमें हमने मॉडल ये लिया है जो कि बेसिकली ओपन सोर्स है, हगिंग फेस के थ्रू अवेलेबल होता है ये। देन हम डाउनलोड कर रहे हैं एक नया मॉड्यूल LangChain कोर है, देखो ये HF टोकन ले रहा है, देखो मैंने कहा था ना। सो बेसिकली मेरे पास HF टोकन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं उसको एक्सेस दे रहा हूँ उसका। आप पे नहीं है तो आपको HF टोकन कहाँ से मिलेगा, आप जाएंगे हगिंग फेस पे, huggingface.co, यहाँ पे आपने प्रोफाइल बनाई है अपनी, देन गए एक्सेस टोकन्स पे एंड देन पासवर्ड डाला एंड देन यू कैन जनरेट टोकन, ठीक है। इट्स दैट सिंपल, राइट। सो हमारी एम्बेडिंग लोड हो गई हैं, बाकी चीज़ें भी हो गई हैं। बढ़ते हैं आगे वेक्टर स्टोर से। वेक्टर स्टोर बेसिकली मैंने बताया इन मेमोरी में स्टोर करेंगे चीज़ें हम सारी, ठीक है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोड कर रहे हैं BSO, दैट इज़ ब्यूटीफुल सूप, जो कि हमारा यूज़ होता है वेब स्क्रिपिंग के लिए, ठीक है। मतलब नेट से डेटा निकालना है कुछ। देन LangChain में हम यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट लोडर, हब अभी छोड़ दो, हब यूज़ नहीं हो रहा है सच कहीं। डॉक्यूमेंट लोडर जो कि बेसिकली वेबसाइट लोडर है, मतलब वेबसाइट में से जो कंटेंट आएगा उसको लोड करने वाला। हम अभी के लिए वेबसाइट कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट है, टेक्स्टप्लेटर है, ग्राफ, अब ग्राफ छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेबसाइट में से कंटेंट लोड कर रहे हैं एंड उसको पास कर रहे हैं वेक्टर स्टोर में विद लाइक पहले तोड़ रहे हैं उसे, लाइक देख रहे हो टेक्स्टप्लेटर, पहले बहुत बड़ा टेक्स्ट को तोड़ रहे हैं पहले उसे, देन सेव कर रहे हैं उसे वेक्टर स्टोर में, राइट। एंड अभी के लिए ये छोड़ दो सब ऊपर जो हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ग्राफ्स होते हैं, आप मानो ये एक ग्राफ कनेक्ट करता है, LangGraph के एक मॉड्यूल होता है जो कि हमें जो चीज़ें कर रहे हैं ना उसको एक जगह नोड के फॉर्म में कनेक्ट करता रहता है। दिखाऊंगा इसके आगे इम्प्लीमेंटेशन में। अभी के लिए आप मान लो कि ये एक ऑटोमेटिकली डिफाइंड फंक्शन है जो कि सब चीज़ में काम करेंगे, हर एक यूज़ केस के लिए ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली हैं। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था वेक्टर स्टोर में सिमिलैरिटी सर्च होता है, हम देखो वही यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर स्टोर डॉट सिमिलैरिटी सर्च, ठीक है, जो हम आगे यूज़ करेंगे। अभी हम सिर्फ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसके। जनरेट बेसिकली जनरेट मतलब कि LLM से जनरेट करना कोई रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन सेम रहने वाले हर एक यूज़ केस के लिए। हम चेंज क्या होगा आपको मैंने ऊपर बताया, ये लोडिंग करने का तरीका, वेक्टर स्टोर, ये सब चीज़ें, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं हम रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। रिट्रीव मतलब कि मैंने बताया ना वेक्टर स्टोर के लिए, वेक्टर स्टोर डेटा निकालता है LLM के लिए, रिट्रीव उसे कहते हैं। देन जनरेट करना मतलब उस क्वेरी एंड कॉन्टेक्स्ट के बेस पे जनरेट करना रिस्पॉन्स। इतने ये हो रहा है, इतने बाकी देखते हैं बाकी क्या है इसके आगे। देन रिस्पॉन्स, अब देखो डायरेक्टली रिस्पॉन्स आ गया हमारा, इसके बाद ख़त्म हो गया है ये इतने पे, ठीक है। हमने वापस बता दो क्या करा, वापस हमने LLM लोड करा, हमने एम्बेडिंग लोड करी, हमने कंटेंट लोड करा फ्रॉम वेबसाइट, उसको पास करा एम्बेडिंग में, देन पहले ब्रेक करा, फिर एम्बेडिंग में पास करा, फिर वेक्टर स्टोर में स्टोर करा हमने। फिर हमने कुछ फंक्शन डिफाइन करे जो कि बेसिकली रिट्रीव करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है, एंड उसको फिक्स कर दिया एक ग्राफ में। अब एक ग्राफ मानो कि एक नोड, मैंने बताया आपको नोड कनेक्ट कर रहा है, तो नोड बेसिकली पहले डालेगा उसे एम्बेडिंग में, देन वेक्टर स्टोर में, देन रिट्रीव करेगा एंड देन जनरेट करेगा। तो ये नोड क्रिएट करने के हेल्प करता है। LangGraph एक इजी मेथड है। हमारा ऊपर हो चुका है चीज़ें। अभी देखो ये जो क्वेरी जनरेट हो क्या है तुम्हारे पास, ये आंसर जनरेट हो क्या है, ये आया आपके पास वेब कंटेंट के थ्रू। वेब कंटेंट में हमने रैग लगाया एंड उसमें ये आंसर आया विद दिस क्वेरी, व्हाट इज टास्क डिकम्पोजिशन। सो इट इज़ दैट सिंपल, ठीक है। डिटेल वॉक थ्रू, आपको ये जो चीज़ें डिटेल में पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, कैसी चीज़ें क्या हुई, कंटेंट कैसे जनरेट हुआ यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट स्प्लिटर कैसे हुए, इसके बाकी पैरामीटर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। अगैन दिस ट्यूटोरियल इज़ ओनली फॉर गिविंग यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ LangChain, कि LangChain आखिर काम कैसे करता है क्या एग्जैक्टली, एंड बेसिकली जितनी भी चीज़ें आजकल इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, दैट इज़ रैग,
ये काम कैसे करती है, LangChain कैसे हेल्प करता है उसमें, ठीक है. दो यू कैन नॉट यूज़ LangChain एंड यूजिंग लाइक यू कैन मे बी यूज़ अ ट्रेडिशनल मेथड जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है. मतलब ओपन ए डॉक्यूमेंटेशन में जाके ओपन ए के आपने LLM निकाल लिया, देन अगेन एम्बेडिंग डॉक्यूमेंटेशन में आके आपने एम्बेडिंग निकाल ली, वेक्टर स्टोर क्वाड्रेंट पे जाके आपने क्वाड्रेंट निकाल लिया. तो मेथड आप बहुत सारे हैं करने के, बट LangChain आपको एक जगह प्रोवाइड करे सब सारी चीज़ें, ठीक है, अपने मॉड्यूल्स के थ्रू. तो इट इज़ आई मीन दैट सिंपल. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट LangChain ओनली, LangChain देखो मुझे ऑनेस्टली इतना पसंद नहीं, क्योंकि वो थोड़ा ब्लोटेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो कभी कभी समझ नहीं आती. तो मैंने अपना ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क बनाया था मैंने, एम्पायर चेन, ठीक है. सिमिलर पाइथन फ्रेमवर्क है बट इट्स वेरी वेरी सिंपल. मैं आपको दिखाता हूँ. इट्स लाइक 36,000 डाउनलोड्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है. ये क्रॉस कर रखे हैं मैंने, 2 महीने समथिंग हो गए मुझे बनाए हुए. एंड इसमें क्या क्या चीज़ें हैं बताता हूँ आपको मैं. रैक मैंने आपको दिखाया, रैक में सब चीज़ें हैं इसमें दिखाता हूँ रैक कैसे काम करता है. बस 30 लाइन्स एंड रैक ख़त्म. इसमें क्या कर रहे हैं हम, क्वाड्रेंट वेक्टर स्टोर डाउनलोड कर रहे हैं, एम्बेडिंग डाउनलोड कर रहे हैं, ग्रॉक LLM डाउनलोड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट लोडर डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है. सबको फिट करा हमने एंड ख़त्म. यहाँ पे सब बहुत प्रीटी मच ईजी अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है. 30 लाइन में रैक खत्म. मैं नहीं कह रहा ये यूज़ करो, LangChain बेकार है. LangChain ऑब्वियसली बेटर प्रूवन है इंडस्ट्री इन सब में, बट आई हैव जस्ट गिवन माई अटेम्प्ट टू मेक अ वेरी सिंपलर वर्जन ऑफ दैट, ठीक है. आप यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दैट, आपका मन करे डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो, नॉट फोर्सिंग की मतलब करना ही करना है. ऑब्वियसली LangChain कई चीज़ों में बेटर है इससे, बट फॉर श्योर सिंप्लीफिकेशन में चीज़ों में यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दैट. एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग की एक्चुअली चीज़ें ये बनती कैसे, so you can just explore that. And ये open source है तो you can also contribute on that. So yeah, thank you. कुछ डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना मुझसे, ठीक है. एंड या बाकी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी. डॉक्यूमेंटेशन इज़ काइंड ऑफ गुड फॉर मी, ठीक है. ट्यूटोरियल्स में काफ़ी अच्छे दे रखे हैं आपको, रैक कैसे बनाना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं. LangSmith बेसिकली मॉनिटरिंग में यूज़ होता है, आपकी कितने टोकन्स किस में लगे, इसमें इवैल्यूएशन कैसे होती है चीज़ों की, इसमें ये सब चीज़ें बहुत यूज़फुल होती हैं मतलब इंडस्ट्री यूज़ केस में. सो जस्ट मेक गुड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दिस, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आपको बना के चीज़ सीखने को मिलेंगी. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो या थैंक यू एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग योर गुड प्रोजेक्ट्स ऑन दैट. या थैंक यू अगैन.